حسین ابن علی دارالخلافہ کی طرف جا رہے ہیں، زہرا کے فرزند کی خبر لو۔ حسین ابن علی دارالخلافہ کی طرف جا رہے ہیں، زہرا کے فرزند کی خبر لو۔ کیا ہوا ہے بن حریث؟ یہ کیسا شور ہے؟ یا امیر، یا امیر، یہ ان کوفہ والوں کا شور ہے جو حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کر دو، کسی بھی قیمت پر حسین کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح سے دوسرا رخ نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حسین عراق کی حکومت سے بہت زیادہ بے فکر نہیں تھے۔ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے، تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے۔ آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ کیا میرے سینگ ہیں یا دم؟ نہیں نہیں، میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان؟ پورا کوفہ حسین کا طالب ہے۔ میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا؟ جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا۔ اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے۔ تعجب ہے، تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی؟ میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا۔ مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے؟ کوفے میں شیعہ اقلیت میں ہے، جب تک یہ لوگ اقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہے۔ یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے؟ ہاں، میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے۔ معاویہ مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ ہاں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلک میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں۔ خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہت خوب بڈھے سیاستدان۔ مسلم کہاں ہے؟
मैंने सुना है कि कूफे के अतराफ के कबीलों से बैत तलब करने के लिए कूफा से बाहर निकला है। सुना है इसने। तुम कूफे के हाकिम थे, तुम्हें देखना चाहिए था। इसी वजह से कूफे की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ और आप देखने पर कुदरत रखते हैं। वाकई? मजाक तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, ये बात मेरा दिल जानता है। और फिर जो आप हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं, यही आपकी अक्लमंदी और होशियारी की बहुत बड़ी दलील है। कूफा हमेशा से रिंद लोगों के आगे झुका रहा है और बेशक आपकी सियासत इंतहाई रश्कावर है। मैं बेजा तारीफ और खुशामद को पसंद नहीं करता नौमान। मुझे शक नहीं है कि तुम खलीफा के वफादार हो, मगर कूफा के बिल्कुल उल्टे हालात नादानियों का सबब है। मुझे कूफा पर मुसल्लत होने के लिए बावसूख खबरें चाहिए। महल में रहिएगा, मुझे मुशीर की जरूरत है। जा सकते हैं। आपसे मशवरा करने के लिए मेरी जबान बेकार है। आपको मुझ जैसे शख्स से मशवरे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तुम नहीं चाहते कि जो बकवास माहौल तुमने बना रखा है इसकी तलाफी में मेरी मदद करो? ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बेहुदा मुशीर से मशवरा लेना सिर्फ वक्त जाया करना और बेहूदगी है। एक मासूल हाकिम होना मेरी नजर में ज्यादा इज्जतदार रास्ता है बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं। मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फो करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सक़फ़ी से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली। तो फिर कुछ देखा? नहीं। फिर बागियों ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। हाथ कट जाए अबू लहब के जो रसूल अल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है तो बिलादरेख उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बारात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहां जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई हैं। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिन उरैस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूं जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। ये आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे? क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है
कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाय ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा, उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीउ फरमाबरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा ये कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस, नहीं, हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नुमान, यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। नोमान जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था। वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुर्तों के अमीर हो? था, आज के बाद से आपकी रकात में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नौमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन हुरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है। नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो, करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नौमान का अंजाम देखा तुमने? नौमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नर्म दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह। क्या आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए। अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। जो हुक्म आपका। उम्र साद हाथ से ना निकले। सुसड़ ना हुआ, बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार। मैंने नजूमियों से सुना है कि नहर से असगर नहर से अकबर बन गया है। ये रसूल खुदा की वही पेश गोई है
اذا زہرت البدع فی امتی، بدعت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک ہولناک بدعت۔ میں اس حسین ابن علی کے فتنے کی منطق نہیں سمجھ پایا، وہ بھی اس خلیفہ کے دور میں جو شاعروں اور ادیبوں کا خاتم ہے اور دین مصطفیٰ کا زیور اور زینت ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے آگاہ کیجئے کہ میں جاہل نہ مروں۔ حسین رسول خدا کا نواسا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ۔ کیا رسول خدا سے رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز۔ میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے، ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے۔ بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا، اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے۔ کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلاً و سہلاً، تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم باخدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی، امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور گل و زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان، مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس زعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکم عمی کے مستاق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خوانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھاڑنے کی جگہ ہے
कहीं ऐसा तो नहीं कि रूमी तोपों और मंजनीक और शाम के अजीम लश्कर से डर के आप लोगों ने अपना दीन बेच दिया है और अपने मुंह पर मोहर लगा दी है और अपने कानों को दरवाजा बना लिया है। पहली बात तो यह है कि लश्कर शाम एक धोखा है, झूठ है, सच नहीं है। यजीद ने कूफे की तरफ कोई लश्कर भेजा है? बहुत खूब, भेजा हो। किसी इराकी को लश्कर शाम से क्या डरना? इराकी ने तो बारहा शामी से पंजा आजमाई की है और गालिब रहा है। मरजाना के बेटे ने मौला हुसैन को अबू लहब और जनाबे नूह के बेटे से मिला दिया, जो कि दोनों के दोनों कुरान में मखदूब इलाही हैं, मगर उसके मुंह में खाक हो कि सुन्नत पैगंबर और अहादीस नबवी से कोई बात नहीं की। ऐ उलमाए दीन, कारियान कुरान, साहब रसूल जो खुद उनको देख चुके हो और रसूलुल्लाह के अमल और सुखन के ऐनी शाहिद रहे हो, क्या रसूल खुदा ने नहीं फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है कि अगर उसमें दाखिल हो जाओ तो महफूज हो और अगर उसे पीठ दिखाई तो हलाक हो जाओगे। इस शख्स को जानते हो बिन हुरैस? यही फरमाया है। जी हाँ अमीर, एक बेकबा खजूर बेचने वाला है, नीसम तम्मार के नाम से मशहूर है। वाए हो उस अली की पैर चूमने वाले साथियों में से है। बंदरबाज शराबी को खिलाफत पर तो फिर वो शियों के मोटी गर्दन वाले बड़े लोग किस कब्रिस्तान में मुंह छुपाए फिर रहे हैं मरजाना के कि बेटे एक खजूर बेचने वाला मैदान में उतर आया है? अबू लहब और जनाबे मुझे तवक्को थी कि खान इब्न उर्वा या सुलेमान सुर्द खुजाई मैदान में आता, दोनों के दोनों ना कि ये बेसरुपा खजूर फरोश। उसके हाथ पांव बांधकर दारुल हुकूमत ले आओ। वो जी लोग अमीर। जो वही की ताबीर और तफसीर कर सकते हो, आवाम को बिदतों का असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? यजीद की बैत तोड़ने वाले बिदती हैं या वो जिन्होंने यजीद की तरफ बैत का हाथ बढ़ा दिया है? मैं भी मरजाना के बेटे की बात से मुत्तफिक हूं कि बिदत ज़हूर कर चुकी है। बिदत वो जुआ खेलने वाला है जिसका गमखार शराब का प्याला है। बिदत वो हवसरानी करने वाला है जिसकी इबादत ज़ना है। मत करो। बिदत वो कातिल है जो शैतान के तरीके की भी परवाह नहीं करता। बंद करो। बिदत वो हवसबाज है जिसकी नमाज सिर्फ हवसरानी है। तमाम मुरीदान अली के ऐसी हुलिये के हैं, इसकी धूल मिट्टी साफ करके और मुंह से मक्खी उड़ा के इसे दारुल हुकूमत ले आते। कितने अरसे से तुम्हारे जिस्म को पानी नहीं मिला खजूर फरोश? क्या तुम लोग गुस्ल नहीं करते? पहली बात तो ये कि खाक पाक करने वाली चीजों में से है और तहारत कर सकती है। दूसरी बात ये कि मक्खी और मच्छर इस जहां में मेरा खून चूस लें, ये कहीं बेहतर है बनिस्बत ये कि ये जिस्म कब्र में सांप और बिच्छू की खुराक हो जाए। तीसरी ये कि ये हरामजादे की खासियत होती है कि वो तहकीर और तोहमत के सहारे अपने दुश्मनों को तकलीफ दे, वरना ना तो मैं खाक आलूदा हूं और ना कोई मक्खी मच्छर मेरे साथ है। बदतमीज! वो बहुत कमजोर है अमीर। ये बुढ़ा वैसे ही मरने के करीब है। इसने अपनी रोटी खा ली है और कपड़े फाड़े हुए हैं। इससे बहस करना सिर्फ आपको तकलीफ देगा। हैफ है कि आप इस जैसे कमजोर से लड़ें। उससे एक दर्दनाक तरीके से मारूंगा। ले जाओ, इसके हलक से जबान खींच लो और एक खजूर के पेड़ की टहनी पर लटका दो ताकि सारी खलकत इसे मुंह के पानी से गुस्ल दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुदा की कसम मैं जानता था कि तुम क्या करोगे। मैंने अपनी मौत की कैफियत बहुत पहले अपने मौला अली की जुबान मुबारक से सुनी थी। अली? तुमने अली से क्या सुना है बुड्ढे? मेरी मौत की दास्तान। मौला अली ने फरमाया था, मैसम,
तुम एक बदकार औरत के बेटे के हाथों कत्ल किए जाओगे कि तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें उसी दरख्त पर सूली पर चढ़ाएगा जिससे तुम रोजी खाते हो। ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मैं तुम्हें इसके झूठ का अभी सबूत देता हूं बुड्ढे। तुम्हें ऐसा कत्ल करूंगा कि अली की पेशन गोई के बिल्कुल मुशाबे ना हो। बिन उरैस, जी अमीर। उसे ऐसी कौल कोठड़ी में डाल दो कि हशरातुल अर्ज उसके बदन का गोश्त खा ले। तुम खुद अली की सच्चाई से वाकिफ हो, फिर बेहुदा बातें मत करो। कसम खुदाए ला शरीक, मैंने हरगिज अली से सिवाय हुज्जत और हकीकत के कोई और सुकून नहीं सुना। बिन उरैस, इसका मुंह बंद करो और इसे मेरी आंखों से दूर करो। सिपाहियों जल्दी। रुखसत चाहता हूं अमीर। कहाँ इब्ने साद? अमीर से इजाजत तलब करके मैं हुकूमती मकाम मुनसब छोड़कर कोई मुनासिब काम ढूंढने जा रहा हूं। मसलन कौन सा काम? मसलन खेती बाड़ी, सनतकारी या कोई तिजारत। चरवाहे का काम भी बुरा नहीं है। जानते हो, ज्यादातर नबी मबूस होने से पहले चरवाहे थे। चरवाहे बन जाओ, शायद तुम भी नबूवत पर मबूस हो जाओ। मैं तो अंबिया के सिलसिले के खत्म होने पर अब तक शक करता हूं। ये लोग अब भी मुर्शिद और मुरसल चाहते हैं जो उनकी हिदायत करे। ऐसा क्या हुआ जो अपना काम बदलने का फैसला कर लिया तुमने? जब एक आम सा बूरिया और टाट पहनने वाला खजूर फरोश एक कुदरतमंद अमीर के दिल में दर्द पैदा करके उसे अपनी मसनद पर लिटा सकता है, तो फिर यह मसनद एक लरसने वाली मसनद है। जब आपको वीरान कर दे तो फिर हम निचले तबके वालों पर तो वाय है। ए पिसर साद, ये तख्त हौलनाक तूफानों से भी नहीं लरस सकता अगर इस पर सवार होने वाला एक चालबाज और मक्कार इंसान हो। तो फिर आप क्यों ठंडे पड़ गए? मैंने चाहा मश्क कर लूं। अब आपको रुखसत दी, रुखसत दी। जा सकते हैं, जा सकते हैं आप। ये बोरिया पहनने वाला मौत का मुश्ताक मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि इन जैसों के साथ क्या करना चाहिए। हमें गम अंधों की मशक करनी होगी ताकि बवक्त जरूरत हम लोग हैरान और परेशान ना रह जाएं। कभी कभार आंसू के एक कतरे से रियाया के दिलों को मुसख्खर किया जा सकता है। ए इब्ने साद, हुकूमत रे के लिए तैयार हो? हुकूमती रे? हाँ, हुकूमत रे। मैं जहांबाजी के लिए तैयार हूं, चाहे मुल्क रे की हुकूमत हो, चाहे अमीर की रकाब में नौकरी हो। ईरान को अबू उबैद ने फतह किया और उसकी शोहरत साद अबी वकास को मिल गई। जब साद खड़ा हो गया तो मैंने अपनी तलवार को चूमा और गिलाफ में रख लिया। उस दिन तक जब हम अली इमरान के साथ जंगे जमल के लिए निकले। जंगे जमल में हमने मालिके अश्तर नखई के साथ मिलकर लाल बालों वाले ऊंट के साथ वही काम किया जो अबू उबैद सकाफी ने
ईरानी हाथी के साथ किया। दीन सैयदुल मुरसलीन आजकल फिर तुम जैसों की तलवार का मोहताज है शेख। यजीद हराम पीते हुए सैयदों की आबा पहनता है ताकि अहले बैत सादात और उनके मुखलिस साथियों की तौहीन कर सके। यजीद अरब की उसी मारूफ खातून का तुखन है जिसने हजरत हमजा का सीना चाक करके उनका जिगर चबाया। हम इलियाची हजरात इर्स व मीरास से खूनी पर यकीन रखते हैं। जिगर ख्वार हिंदा से तो यजीद जैसा बदकार ही आ सकता है। खुदा हमें अपनी पनाह में रखे। इलियाची कौम का नारा गैरत, शरफ और मर्दानगी है। मुख्तार, अगर जंग का इरादा है तो फिर हमारे साथ भी जल्दी से मामला करो। खुदा तुम्हारा भला करे अबू जाकिर। मैं अपने लिए बैत नहीं मांग रहा, मैं हुसैन इब्ने अली के लिए बैत लेने के लिए आया हूँ। हम मौला हुसैन के नौकर हैं। मुझे नहीं लगता कि हुसैन इराकियों के साथ कुशादा रोई से पेश आएंगे, खास तौर पर इतनी बेगैरती के बाद जो उनके वालिद और भाई के हक में की गई। जीत तो मौला हुसैन की ही है जब मुख्तार उनके पास हो। हाथ बढ़ाओ मुख्तार। मोहम्मद का खुदा गवाह है कि ये बैत सिर्फ अबू जाकिर की मौत से ही बातिल हुई। रे पर तसल्लुत हासिल करने के लिए राहें इतनी भी हमवार नहीं हैं। रे कूफा की तरह एक बेसुकून सरजमीन है। नौजवान खलीफा के मुखालफिन रे में सर उठाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्द तकरीबन 10,000 अरब जंगजुओं के लश्कर को लेकर रे की जानिब निकलना होगा। खलीफा ने मेरी राय मांगी, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। मुझे खलीफा के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। हुकूमत रे मेरी बहुत पुरानी आरजू रही है। आप मुतमईन रहिएगा, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर काम शुरू कर दो। लश्करियों के खर्चे मेरे जिम्मे और लश्कर तैयार करना तुम्हारे जिम्मे। कूफा के तमाम मुत्तहिद और मवाफिक कबीलों से बात करो, उनके तलवार बाजों को जहाद की दावत दो। उनके वाजिबात और सरकारी अदायगियों के बारे में कोई भी बात मत करना। क्या सोच रहे हो उमर? मुख्तार सक़फ़ी के बारे में। वो एक मुश्किल रकीब है और कबाइल के दरमियान असर नफूज रखता है। डर है हमारे तमाम मंसूबे खराब ना कर दे। मुख्तार तुम्हारा बहनोई है। काश ना होता। मैं उसके सर को उसके तन पर नहीं देखना चाहता। उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी मुख्तार को मार दूं? हुकूमत रह के बदले कैसा रहेगा? मुख्तार को मारना एक दुश्वार काम है। अपनी जान के बारे में डर रहा हूँ। मुख्तार के फिदाई बहुत से लोग हैं, बिला शक इसके कातिल का क़िसास लेंगे। तुम उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल सकते हो। मुसिर है कि मुख्तार मारा जाए। मुख्तार के जिंदा रहने से कूफे का हंगामा थमने वाला नहीं, मगर ये जबरदस्ती नहीं कि तुम उसे मारो। अगर मुख्तार के होते हुए तुम लश्कर बना सकते हो तो कोई मसला नहीं। घोड़ा और मैदान सामने है। जाओ, देखते हैं क्या करते हो तुम। मुझे पता था कि यजीद के आने से इस दियार के मामलात उलझ कर रह जाएंगे। मुआविया ने 100 साल की जितनी मेहनत की है कि इन विरासतों को इधर से उधर करे, उसे सारे हरबे आते थे। उसने अपने मुंह के निवाले को चबाकर ऐसे यजीद के मुंह में डाल दिया है कि वो बासानी उसे चबा ले। उसका गला दबा देंगे अबल हदीद। कुछ ऐसा करें कि ये लुकमा उसके गले का फंदा बन जाए। किस तरकीब से अबू इसाक, किस तरकीब से? हिजाज से लेकर फारस के खुरासान तक यजीद के कब्जे में है। उन कूफियों के भोंकने की मदद से जो गोश्त के टुकड़े से छुप हो जाते हैं। तुम उनके साथ मिलकर चाहते हो कि उस सुल्तान को शिकस्त दो जो आधे आलम खाकी पर खुदाई कर रहा है। इसका मतलब है मैं गलत जगह आ गया हूँ। जिस अबल हदीद को मैं जानता था वो तवक्कल का पहाड़ था और नाउमीदी उसके लिए कुफ्र थी। क्या करूं मगफूर बाप के बेटे? क्या मुक्के मारूं सिल पर? मारो। तुम्हारा मुक्का बट्टे का काम करेगा कि शायद इसी तरह तुम मैदान में उतरो जैसा मौला अली के पास कभी खिदमत में रहा करते थे। मैं भूल नहीं सकता कि तुम किस तरह जंगे से फैन में शामी सिपाहियों पर हमला करते थे और दुश्मन को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते चले जाते थे। इतने सारे जहाद का अंजाम क्या हुआ? उमरों आस ने कुरान नेज़ों पर उठवा लिए और कूफे की गधों की औलाद लोगों ने मौला अली को काफिर ठहरा दिया और उनकी गर्दन पर तलवार रख दी।
मेरी और मेरे कबीले की बैत से कम बनता है तो ये मेरा हाथ और ये मेरी शरक हाजिर है। कूफे वाले आधे राह के साथी हैं मुख्तार। बेकार में फर्जंद रसूल को इराक बुलाकर दरबदर मत करो तुम लोग। मैं मौला हुसैन की कूफा आमद से मुवाफिक नहीं था अबल हदीद, मगर मेरी मुखालफत से कुछ नहीं हुआ। मौला हुसैन कूफे का आज़म कर चुके हैं। अगर तुम्हारी गैरत राजी है कि तुम फर्जंद रसूल का साथ नहीं दो तो मत दो, मैं तुम्हें जहमत नहीं देता। मुझे तुम्हारी निगाहों से शर्म आती है कि मैं तुम्हें कोई मनफी जवाब दूं। खुदा की कसम, एक राई के दाने के बराबर भी इन कूफियों से मुझे उम्मीद होती तो उससे फैन के दिनों की तरह कफन पहन लेता और मौत से सौदा कर लेता। अफसोस, भेड़िए का निवाला यानी मौत के मुंह में खुद को डालना। अपने दिल के हुक्म पर मौला हुसैन की बैत की है अबल हदीद, अक्ल के हुक्म पर नहीं। जी हाँ, भेड़िए करने वाला यानी मौत। कूफे वाले गधे की औलाद हैं, आधे रास्ते के साथी हैं, वादों में बेवफा हैं, मगर तुम्हें क्या? तुम वाकिफ हो कि मौला हुसैन बरहक हैं या नहीं? मैं मौला हुसैन की हक्कानियत का मुनकिर नहीं हूं अबू इसहाक। बहुत खूब। बरोज़ हशर अगर तुमसे पूछा जाए कि हुज्जत हक का साथ क्यों नहीं दिया था तो क्या यही जवाब दोगे जो तुमने मुझे दिया है? न तुम्हें कूफियों की कब्र में सुलाया जाएगा और न तुम्हारे अमल को कूफे वालों के अमल से नापा जाएगा। अब तुम खुद ही जानो। रुको अबू इसहाक। बैत लिए बगैर जा रहे हो? मैं तुम्हारा मशकूर हूं अबू इसहाक, मशकूर हूं। तुम सही मौके पर मेरी मदद को पहुंच गए। बहुत बुरी तरह मैं अपने आप में एक जंग में गिरफ्तार था। खुश आमदीद। क्या खबर है? यहां तक जितनी तवक्कुआत थी सब गलत साबित हुई। मरजाना का बेटा बगैर किसी इत्तला के पहुंच गया, वो भी बगैर किसी लश्कर और नकारे बजाने के। उस लिबास में आया कि सब ये समझने लगे जैसे मौला हुसैन है। उसके बाद मिंबर पर जाकर रजस्खानी की और तमाम बेअत तोड़ने वालों को सख्त तरीन शिकंजों की धमकी दी। उसका पहला शिकार मीसम तमार थे। जब मीसम को मारा जा रहा था, सारे कूफे वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इब्न ज़ियाद ने जहालत को कूफियों का डर समझ लिया है। वो बगैर लश्कर के इसलिए आया है ताकि कूफा वालों को उन्हीं के हाथों से फतह करे। सादा लो दोस्तों से कहो कि खुदारा कूफे वालों की बातों पर कान न धरें। मीसा में तम्मार का कैद होना इस बात का गवाह है कि कूफे वाले सिर्फ हांडी के चमचे हैं। तुमने क्या किया अबू इसहाक? वही जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ के देहातियों का एक एक बाल करोड़ों बेवफा कूफियों से ज्यादा कदर कीमत रखता है। उम्र साद को हुक्म दिया है कि एक लश्कर तैयार करे रे पर हुकूमत करने के लिए। रे पर या कूफे पर? जाहिरन तो रे का ढंडूरा पीटा जा रहा है, मगर पर्दे के पीछे असल में तुम्हारा गुमान ठीक है। इब्ने मरजाना ने उम्र साद को हुकूमत रे के वसवसे से फरेब दिया है। सरअंजाम हुकूमत रे का ख्वाब व ख्याल इस आदमी को पागल बना देगा। जनाबे मुस्लिम का तो कहीं पता नहीं मिला ना उसे? अभी तक तो नहीं, मगर कुछ देर नहीं लगेगी अबू इसहाक। इब्ने मरजाना जरा सा कदम जमा ले, जनाबे मुस्लिम का भी सुराग लगा लेगा। मुझे लगता है कि इब्ने मरजाना ने इस बात पर यकीन किया हो कि जनाबे मुस्लिम कूफा में नहीं है। कैसे?
کیسے کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مگر ایسا احتمال ہے کہ اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیان، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب مسلم کا بہت دھیان رکھیں۔ ابن مرجانہ مکاری کا خدا ہے۔ یہ جو لباس حسین پہن کر کوفہ میں گھسا ہے، یہ ایسی چال تھی جو کسی کے گمان میں نہیں ہوگی۔ ممکن ہے اس کے جاسوس ہمارے اپنوں کے لباس میں ہمارے حلقے میں گھس آئیں۔ کہو کہ جناب مسلم کی اقامت گاہ کو تبدیل کرتے رہیں۔ جناب مسلم کو کسی بھی گھر میں زیادہ لمبے عرصے نہیں رہنا چاہیے۔ مختار سے کہو کہ عراق کے ان قبیلوں سے غافل نہ رہے جنہوں نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے۔ ان لوگوں سے ایسے معاملہ طے کر لو کہ وہ سب واقعی کسی کی طرفداری نہ کریں اور کم سے کم ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں۔ عمر سعد کو حکم ملا ہے کہ عرب کے انہی قبیلوں میں سے بے حساب سونے کی لالچ سے ایک عظیم لشکر بنائے۔ ایلیاتی لوگ ممکن ہے دین کے معاملے میں سست و کاہل ہوں، مگر ایلیاتی رسم و رواج کے معاملے میں نہایت مضبوط لوگ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حرمت کو ان درہم و دینار کے بدلے بیچ ڈالیں۔ مختار کا ایک اور پیغام بھی ہے۔ ہم سن رہے ہیں۔ ابو اسحاق کچھ پریشان تھا۔ یہ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو بھائی؟ ابو اسحاق کا پیغام کیا ہے؟ وہ کیوں پریشان تھا؟ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکار لوگ شیعوں کے نام سے ہمارے حلقے میں داخل ہو جائیں اور جناب مسلم کی رہائش گاہ سے باخبر ہو جائیں۔ اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب مسلم باری باری گھر بدلتے رہیں اور کسی معین جگہ پر زیادہ عرصے نہ رہیں۔ مختار ذاتی طور پر ایک بری سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ اس کے گمان کے مطابق تو ہمیں اپنی آنکھ کے دیجے پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس کے خیال میں ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانیں گے اور معاملہ خراب ہو جانے دیں گے۔ غلط مت سوچو سلیمان، ابو اسحاق ایک دور اندیش شخص ہے، اس کا پیغام کوئی برا نہیں ہے۔ ابن زیاد مکاری کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا ہے، بعید نہیں ہے کہ اس کے کارندے کسی مکاری سے ہمارے راز سے باخبر ہو جائیں۔ ہانی جان، جناب مسلم آپ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری بیماری ایک اچھا بہانہ ہے، عزیز احباب تمہاری عیادت کو آئیں اور کوئی شک بھی نہ کرے۔ بھائیوں، مختار کا پیغام یہ مطلب رکھتا ہے کہ احتیاط کرنا عقل کی نشانی ہے۔ اب جبکہ قضاء و قدر الہی کے تحت ہم مجبور ہیں کہ ہم چھپے رہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں سے بھی اجتناب کریں، اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں کوئی شک یا تردید ہو ان سے ہمارے بارے میں یا ہمارے معاملات کی روح سے بات نہ کریں۔ بن حریث، جی امیر۔ کیا ہانی واقعی بیمار ہے یا اس نے بیماری کو ہم سے نہ ملنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے؟ واقعتاً بیمار ہے جناب، میں خود اس سے ملنے گیا تھا، وہ بخار کی سوزش سے جل رہا تھا۔ تعجب ہے۔ بہت خوب، پھر ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ اپنے دشمن کی عیادت کرنے جائیں گے؟ بیمار کی عیادت کرنا سنت پیغمبر ہے، اور دشمن کی عیادت کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ تم نے سنا ہے ابن عقیل؟ تم نے سنا اس حرام زادے کا پیغام؟ ابن برجان آج رات میری عیادت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ عیادت شیطان کی عیادت ہے۔ وہ آ رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو برحق اور قابل توجہ دکھائے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے شر کو ختم کر دیں، کوفے کی راہ مولا حسین کے لیے ہموار کرتے ہیں۔ مطلب کیا کریں شیخ؟ حالانکہ اگر وہ میرے گھر میں مارا گیا تو ساری بات میری گردن پر آ جائے گی کہ مہمان کو عرب نے مار دیا، مگر میری تمام عزت و آبرو میرے مولا حسین پر قربان۔ آپ ابن مرجانہ کو مار دیں گے؟ مگر کیسے شیخ؟ اپنی تلوار کو آمادہ رکھ کر اسی زیر زمین کمرے میں چھپ جائیں۔ جب میں پانی طلب کروں تو باہر آ کر ایک کاری ضربت سے اس کا کام تمام کر دیں۔
شک و تردید مت کیجیے جناب مسلم. افسوس ہے کہ اس بیماری نے مجھے ناتواں بنا دیا، ورنہ میں خود ہی اس کی جان لے لیتا. اس مکاریوں کی جڑ کا زندہ رہنا یعنی انہی بازیوں کا دوبارہ دہرائے جانا جنہوں نے جنگ کے صفین میں مولا علی کی کمر توڑ دی تھی، یعنی ہماری حکومت حق کو برپا کرنے میں ناکامی. خدا کی قسم ابن مرجانہ کوفہ آیا ہی اسی لیے کہ کوفے کو مقتل حسین بنا دے. ابو الفتح اپنے سارے کارنامے آپ کے سامنے بھول گیا اور یہاں سے چلا گیا. اس کے دانت اس طرح لرز رہے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ ٹوٹ نہ جائیں. ہانی ہانی جان، اگر ابھی سویا ہے تو اسے مت جگاؤ. اس نے خود ضد کی تھی کہ جب آپ تشریف لے آئے تو اسے جگا دوں. ہانی ہانی اٹھو، جناب امیر آئے ہیں. بھلا دور رہے شیخ، ہم دعا کرتے ہیں اے کہ ہاتھ، جلد شفا پا جائے. خدا کے واسطے مت گھبراؤ. اے ہاتھ، تمہیں خدا کا واسطہ یہ ٹھنڈے مت پڑ جاؤ. پانی، کچھ پانی لا دو مجھے ابا سرت. مار چکے؟ شرم کرو، شرم کرو. وائے ہو تم پر، تم لوگ مہمان پر تیغ چلاتے ہو. اے ابن عقیل، تم نے اپنے کام سے اپنے چچا علی کی آبرو ضائع کر دی. علی نامردی کے ساتھ کبھی دشمن پر وار نہیں کرتا تھا. علی نے کافروں